السلام علیکم۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے راہ غیر، جو کہ تحریر ہے مریم رحیم کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 7۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور ساتھ ہی اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک دم جھٹکا کھا کر اٹھا تھا۔ پہلے وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑانے لگا، پھر اسے یاد آیا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے موبائل اٹھا کر وقت دیکھنا چاہا۔ فجر کی اذان ہونے میں کچھ ہی وقت تھا۔ اس کے پاس ابھی تک لمبے پیغامات کی بھرمار تھی۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، اور تبھی وہ 3 لفظ بھی یاد آ گئے تھے۔ انہی الفاظوں کو سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ رہی بات خواب کی تو یہ اسے ہر رات ہی آتے تھے، اب تو عادت ہو گئی تھی ان سب کی۔ نہ جانے یہ خواب کب میری جان چھوڑیں گے۔ اس نے سر جھٹکا اور باتھ روم کی جانب چل دیا تھا وضو کرنے۔ تابش آفس آیا تو اس نے دیکھا سب اپنی گردنوں کو جھکائے کام میں مصروف تھے۔ آج اس نے گہرے نیلے رنگ کی آدھی آستین والی شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی، بال ماتھے پر پھیلا رکھے تھے۔ اس نے ایک نظر سب کو افسوس کرنے والے انداز میں دیکھا اور پھر چٹکی بجا کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ادھر ادھر پیارے پیارے بچوں، سب میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سب نے اپنی گردن اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا تابش بھائی، آج صبح صبح آ گئے؟ ویسے تو دوپہر میں آتے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی کی نظر بھی اس کے ہاتھوں میں موجود ڈبے پر نہیں گئی تھی۔ بس بھائی، میرے دل نے کہا کہ آج جلدی جا کر احمد کو خوش کر دوں۔ اب دیکھ لو خود ہی۔ تابش کی بات سننے سب ہنس رہے تھے۔ تبھی فجر کی نظر اس ڈبے پر پڑی تھی۔ اس نے پیچ رنگ کے شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ تابش سر، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تابش نے اپنے ہاتھ میں موجود ڈبے کو دیکھا اور پھر مسکرا کر فجر کو دیکھا۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کے اہم ترین راز ہیں جو بس مجھے ہی معلوم۔ فجر نے ابروچ کھا کر حیرانی سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ اور صرف فجر ہی نہیں، اس آفس کی عوام بھی نہیں سمجھی تھی۔ ارے بھائی، ایک تو تم لوگوں کو بات بات سمجھانی پڑتی ہے۔ عقل کے دشمنوں، اس ڈبے میں کیک ہے، میرے دوست کی سالگرہ ہے آج، کیا تم لوگ نہیں جانتے؟ فجر کے ذہن میں یک کل کا منظر لہرایا تھا۔ تابش نے گھور کر سب کو دیکھا۔ ان کے چہروں سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ سب بھولے بیٹھے۔ سوری تابش بھائی، ہمیں بھول گیا، اسی لڑکے نے کہا۔ چلو بھائیو، تم لوگوں کی گستاخی معاف کر دی۔ کیا یاد کرو گے تم لوگ بھی کہ کبھی تم لوگوں کا ایس پی تابش علی سے پالا پڑا؟ اس کی بات سنے فجر سمیت دیگر ورکرز ہنسنے لگے تھے۔ اب منظر کچھ اس طرح کا تھا کہ تابش ان سب کے آگے تھا اور اس کے بعد فجر اور باقی لوگ تھے۔ تابش حاشر کے کمرے سے تھوڑا دور کھڑا ہو گیا۔ اب وہ پیچھے مڑ کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا۔ سنو احمد، تم اندر جاؤ اور پڑھاکو، میرا مطلب ہے حاشر کو کسی طرح مصروف رکھو، کوئی سی بھی بات ہو، باقی میں یہ سب اور ساری عوام سنبھال لیں گے۔ احمد سر ہلاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے اپنی انگلی بجا کر دروازہ بجایا تھا۔ اندر سے آنے کا اندیا دے دیا گیا۔ احمد نے ایک نظر تابش کو دیکھا تو اس نے چاروں انگلیاں بند کر کے اور انگوٹھا کھولے اسے تھمز اپ کا اشارہ کیا تھا۔ احمد اندر آیا تو حاشر سر جھکائے کام میں مصروف تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سیاہ کوٹ پینٹ پہن رکھا تھا، بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، ہاتھ میں گھڑی موجود تھی۔ السلام علیکم سر۔ حاشر نے جھکا ہوا سر اٹھایا، پھر اسے پوچھا۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ احمد کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ وہ پریشانی میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ حاشر بخوبی اسے دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد، کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں سر۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے دروازہ کھل چکا ہے۔ حاشر نے احمد سے نظر ہٹا کر باہر سے آتے تابش کو دیکھا جس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میرے پیارے راج دلارے دوست۔ تابش نے کیک والا ڈبہ اس کی ٹیبل پر رکھا۔ حاشر نے پہلے تابش کو، پھر احمد کو اور پھر باہر سے آتے باقیوں کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب یہاں کیا کریں؟ اور تابش اس میں کیا ہے؟ ایک نظر سب کو دیکھنے کے بعد اس نے آخر میں تابش کو دیکھا تھا۔ سر، آپ کے لیے ہے یہ سب، اور یہ سب تابش سر نے کیا ہے، احمد نے کہا۔ بس بس احمد بیٹے، سارے راز نہیں کھولتے۔ تابش نے اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پر حاشر ابھی کچھ کہتا، تابش نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ بس بھائی، کتنے سوال کرتے ہو، بول بول کر تھکتے نہیں ہو کیا؟ تابش نے اسے ڈپٹا تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ حاشر نے کیک کی جانب اشارہ کیا تھا۔ لو، ایک اور سوال۔ سب اب مسکرا رہے تھے ان دونوں کی باتوں پر۔ حاشر نے تابش کو غصے والے انداز میں دیکھا۔ بھائی، آج اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی سالگرہ ہے، تو اسی لیے سب آپ کی محبت میں مبتلا ہو کر یہاں موجود ہیں۔ تابش نے ڈبہ کھولتے ہوئے اسے کہا۔ ڈبے میں ڈسپوزیبل چھری موجود تھی۔ حاشر نے کیک کو دیکھا اور پھر تابش کو۔ تابش نے چھری اٹھا کر اس کے ہاتھ میں زبردستی پکڑائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی اس کا کیک کاٹنے لگا۔ بلا وجہ کا وقت برباد کر دیا ہے، اس سے اچھا تو میں ہی کٹوا دیتا۔ تابش کی حرکت پر سب ہنسنے لگے تھے۔ تبھی وہاں صفا آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں گلابوں کا بوکے موجود تھا اور ہاتھوں میں
चकोर साइज का छोटा सा बॉक्स जिसके ऊपर लाल रंग का रैपर भी चढ़ा हुआ था। इसने सुरमई रंग की लॉन्ग शर्ट में खुला पजामा पहन रखा था। बाल दोनों कंधों पर फैला रखे थे, चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप था। वो सीधा अंदर दाखिल हुई। ताबिश की जैसे ही उस पर नजर पड़ी तो उसका चेहरा मजीद खिलखिला गया था। उसे सफा के हाथ में मौजूद गुलाब नजर आए थे, जो गालिबन वो हाशिर के लिए लाई थी। उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। इससे पहले उसके चेहरे से कुछ वाज़ेह होता, उसने फौरन अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ दिया। हैप्पी बर्थडे हाशिर। सफा ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके सामने फूल किए जो उसने थाम लिए थे। ताबिश की नज़र उस पर होकर भी नहीं थी। शुक्रिया सफा। हाशिर ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। अब अगर ये शुक्रिया शुक्रिया खेल लिया हो तो केक खा लें, ताबिश ने हाशिर को घूरते कहा। हाशिर ने एक नज़र उसे देखा फिर छुरी उठा ली, पीस करने लगे। उसने नजरें दौड़ाकर किसी को ढूंढने की कोशिश की तो ताबिश उसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर उसके कान में बोला, ब्रो इधर उधर ना आंखें घुमाओ, नीचे गिर जाएंगी। तुम बस अपने बराबर में देखो, वो उधर ही खड़ी है और माशाल्लाह से आपको ही देख रही है। ये सुनते ही हाशिर ने खुद से दूर खड़ी फजर को देखा था। बुरी आंखों का शहद रंग आंखों से तसादम हुआ और शहद रंग आंख मुस्कुराने लगी थी। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए। हाशिर को होश तब आया जब उसके पास खड़े ताबिश ने ठोका मारा था। आराम से भाई, ऑफिस है आपका। ताबिश ने मुस्कुराकर हाशिर के कान में सरगोशियाना अंदाज में कहा। केक काटा जा चुका था। अब हाशिर केक का एक पीस उठाकर ताबिश को खिला रहा था। ताबिश वो केक मुंह में रखते उसके कान में दोबारा बोला, खिला दो इसे भी, कोई तुम्हें नहीं कुछ कहेगा। अगर किसी ने बोला तो टेंशन ना लो, ब्रो है आपका भाई जिंदाबाद। ज्यादा नहीं तो 2-3 हड्डियां तो तोड़ ही दूंगा। हाशिर ने उसकी बात सुने अपने हाथ का मुक्का बनाकर उसकी पीठ पर मारा था, जो किसी ने नहीं देखा। अब सब आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे से जा रहे थे, सिर्फ इन 3 लोगों के अलावा, सफा, ताबिश और हाशिर के। सफा ने अपना हाथ बढ़ाकर हाथ में मौजूद बॉक्स हाशिर की जाने बढ़ाया। थैंक्स सफा। यूर वेलकम हाशिर, उसने मुस्कुरा कर कहा। हाशिर ने उसे गिफ्ट लेकर चारों तरफ देखा फिर रख दिया था। "अ, क्या हम दोनों आज रात डिनर पर चलें?" सफा ने कुछ सोचकर हाशिर से पूछा। हाशिर के कुछ कहने से पहले ही ताबिश बोल पड़ा, नहीं सफा, मेरा और हाशिर का पहले से प्लान है डिनर का। ताबिश ने अपना मोबाइल निकालते कहा। हाशिर उसे हैरानी से देखने लगा और सोचने लगा कि ये प्लान की कौन सी बात है। अब दोनों के माबैन तो इस लिहाज से कोई बात ना हुई थी। मैंने तुमसे नहीं, हाशिर से पूछा है। सफा ने उसे घूरा। लेकिन सफा, प्लान मैंने बनाया है। उसने अपने सीने पर उंगली रखी। हाशिर ने ताबिश को देखा। नहीं सफा, आज नहीं, हम किसी और दिन चल सकते हैं। सफा ने एक ठंडी सांस भरी फिर हाशिर से मुखातिब हुई, ठीक है कोई बात नहीं। सफा ने ताबिश को जाते हुए घूरा था। ताबिश को उसकी गुस्सीली निगाहें खुद पर जमी महसूस हो रही थीं। उसकी हरकत पर वो मुस्कुरा दिया। जब सफा चली गई तो हाशिर दोनों हाथ अपनी पीठ पर बांधे उसे घूरने लगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारा तो कोई प्लान नहीं था जाने का, फिर तुमने इस बेचारी को क्यों ऐसे कहा? ओहो बेचारी, बहुत तरस नहीं आ रहा इस पर आपको? और किसने कहा प्लान नहीं? ताबिश ने अपनी हंसी बमुश्किल रोकते हुए उसे देखा, लेकिन हाशिर के चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे थे कि वो हंसने पर मजबूर हो गया। अभी बस 2 सेकंड पहले ही तो मैंने बनाया है। हाशिर उसे घूरते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। मैं कोई नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ कहीं, बहुत काम है मुझे। ताबिश ने अपना मोबाइल रखा और उसे देखने लगा। हाशिर ने महसूस किया तो उसने देखा कि ताबिश उसे गुस्से से देख रहा था। तुम्हारे ऐसे देखने से भी मैं नहीं जाने वाला, सो देखते रहो शौक से। वो अपने काम में वापस मगन हो गया। बेटा तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, और आज तो तुम डिनर पर चल रहे, मगर साथ ही साथ ये बता देता हूँ कि हाशिर हुसैन कि आप कल मेरे साथ शॉपिंग पर भी चल रहे हैं। हाशिर ने मुंह खोले उसके नए मुतालबे को सुना फिर कहने लगा, मुझे कल भी बहुत सारे काम है ताबिश। अलवीजी। ताबिश उसकी बात पर हंसा। भाई कल तो संडे है, कल क्या सफाई करने आओगे ऑफिस? ताबिश पेट पर हाथ रखे जोर जोर से हंस रहा था, जबकि हाशिर उसे बस खामोश नजरों से देखे गया। 100 ढीठ मरे होंगे ना, फिर जाकर तुम पैदा हुए होगे, हाशिर ने सरगोशियाना अंदाज में बड़बड़ाते कहा। उसकी ये सरगोशी ताबिश ने बखूबी सुन ली थी। लेकिन तुम भी तो जिंदा हो मेरे प्यारे दोस्त, ताबिश ने भी दो बदो जवाब दिया। कुछ देर बाद दोबारा गोया हूँ। सो तय हुआ, कल तुम चल रहे हो मेरे साथ। हाशिर ने सर लैपटॉप पर झुकाते कहा। देखते हैं। हाशिर इस वक्त अपने कमरे में मौजूद पलंग पर बैठा मोबाइल चलाने में मगन था। बाल माथे पर बिखरे, इसी स्नान में उसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर ताबिश का नाम जगमगा रहा था। उसने एक पल को रुककर अपने मोबाइल को देखा, फिर कुछ सोचकर कॉल उठा ली। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? ताबिश की हंसती मुस्कुराती आवाज़ गूंजी। तुम रोज मुझे देखते हो फिर भी पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूँ? हाशिर के चेहरे पर कोई तासुरात ना थे। अब क्या बंदा अपने दोस्त की खैर खैरियत भी ना पूछे? उसकी बात पर ताबिश झुंझला गया। पूछे पूछे जरूर पूछे, लेकिन ये आधा घंटे बाद कौन पूछता है? हाशिर ने अपने लबों को हल्की सी मुस्कुराहट में ढालते कहा। कोई पूछे ना पूछे, ताबिश अलवी पूछेगा। ये ताबिश अलवी की जिंदगी है, वो बेहतर जानता है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब चाहे वो हर आधे घंटे बाद अपने दोस्त की तबीयत का पूछे या फिर पड़ोसी की तबीयत का, ताबिश अलवी अपनी मर्जी से ही जिंदगी जिएगा। हाशिर ने उसकी बात नफी में सर हिलाया। वो सब छोड़ो भाई, तुझे आज की मेरी बात याद है कि नहीं?
कौन सी बात? हाशिर ने ये जानकर कहा। वो अच्छी तरह से जानता था कि ताबिश किसकी बात कर रहा है। भूल गए? तुम इतनी ज़रूरी बात कैसे भूल सकते हो? हाशिर को अपने कान में ताबिश की चीखती आवाज़ गूंजी। इंसान हूँ, भूल सकता हूँ, इसमें क्या है? ताबिश को जैसे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। देखो, अगर तुम्हारे बहाने एक- देखो, अगर तुम बहाने कर रहे हो ना तो बता दो। मैं क्यों करूँगा बहाने? उसने मुस्कुराकर कहा। मुझे यकीन हो गया है कि तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तुम्हारा मेरा मजाक है ताबिश अलवी? हाशिर ने अब की बार हंसकर कहा तो ताबिश दोबारा उसके कान में चीखने लगा। देखा, देखा, तुम हंस रहे हो, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है, बस मेरे साथ भूले बन रहे हो। चलो बताओ, फिर कल जा रहे हो या नहीं? नहीं ताबिश, बिल्कुल नहीं। मैंने सुबह ही कह दिया था मैं नहीं जाने वाला। वो उठकर मोबाइल कान से लगाते अपनी बालकनी में आ गया। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, देखता हूँ कैसे नहीं जाते तुम, ताबिश ने उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा। बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो, अब बड़े हो गए हो। हाशिर अपनी बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए खड़ा था। तुम कर रहे हो ना बड़ों वाली हरकतें, बस यही काफ़ी है। हाशिर नफ़ी में सर हिलाते वापस कमरे में आ गया और बालकनी का दरवाज़ा बंद करने लगा। देखो ताबिश, ये सब अब बच्चों वाले काम है, मेच्योर बनो कुछ। ताबिश ने उसकी बात पर एक गहरा वक्फा दिया, फिर कहने लगा। मेरी ज़िंदगी में मुझे भाषण देने के लिए मेरी माँ ही काफ़ी है, तुम मेरी माँ ना बनो ज़्यादा। मैंने तुम्हें जो कहा है फ़िलहाल इसके बारे में सोचो। ताबिश का लहजा अब भी हतमी था। ताबिश अलवी, इन सब फजूलियात का मेरे पास वक्त नहीं, समझो मेरी बात को। हाशिर ने भी उसे कुछ ठहर कर जवाब दी। अच्छा ठीक है, रहो तुम अपनी ज़िंदगी में मगन, मैं चला। जब नहीं होगा ना तो याद करोगे। ये कहते ताबिश ने अपना मोबाइल रख दिया था और हाशिर उसके मोबाइल की तारीख स्क्रीन को तकने लगा। फिर वो सर झटकते बड़बड़ाने लगा। चलो जी, शुरू हो गए अब उसके ड्रामे, इसका भी दी एंड करना ही होगा। हाशिर कहते अपने पलंग की जानिब सोने की नीयत से बढ़ गया था। फजर अपने पलंग पर मौजूद सोने की तैयारी में मसरूफ थी। उसके बराबर में रामिस लेटा हुआ था। हिबा अभी अभी गई थी यहाँ से, उसे सुबह कहीं जाना था, इसलिए वो जल्दी सोने चली गई थी। फजर ने अपने दाएं बाएं जानिब चेहरा घुमाकर देखा तो पूरे दारुल अमान में गहरे सकूत का सालम था। हर कोई अपनी नींद के मजे लूट रहा था। दफातन इसी वक्त उसका मोबाइल बजने लगा। उसने तकिए के नीचे से वो निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर आयरा का नाम जगमगा रहा था। वो इस नाम को पढ़कर ही खुश हो गई थी। इसका काफी दिनों से आयरा से कोई राब्ता नहीं था। वो अपना मोबाइल उठाए बाहर लॉन की जानिब चली आई थी, क्योंकि अंदर तो उसने मुनासिब ना समझा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, किधर गायब हो इतने दिन से? फजर ने मोबाइल कान से लगाते उसे सवाल दागा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, तुम कैसी हो? यार बस आजकल घन चक्कर बनी हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, वक्त ही नहीं मेरे पास। ये तो मुश्किल से आज छुट्टी मिली है और जैसे ही वक्त मिला मैंने तुम्हें याद कर लिया। मैं परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए आयरा। उसकी आवाज़ में खासी फिक्रमंदी थी। अरे वो क्यों? आयरा ने हैरानी से पूछा। बस ऐसे ही, शायद तुम याद आ रही थी इसलिए। आयरा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। तो मुझे कॉल कर देती, फजर ने उसकी बात पर कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं की होगी? आयरा को महसूस हुआ जैसे वो उससे नाराज़ हो गई। हाँ हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी, फजर ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर कुछ याद आने पर बताने लगी। मुझे बाबा मिले थे दोबारा। वो लॉन में मौजूद कैरी की जानिब आई थी और झुककर टहनी को छूने लगी। क्या मतलब, कहाँ मिले थे? उसके कान में आयरा की हैरान कुन आवाज़ गूंजी। पहली बार ऑफिस की साइड पर और दूसरी बार पार्क में। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? आयरा की आवाज़ में घबराहट थी। वो और कुछ करे ना, ऐसा हुआ है कभी? जो अब होगा। उसके लब तलखी से मुस्कुराहट उसके लब पर तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी थी। दोनों के माँ बहन कुछ देर के लिए गहरी खामोशी हायल रही। अब तुम क्या करोगी? फजर ने गहरी सांस भरी। ये मेरी आजमाइश है जिसे मैंने पूरा करना है। मैंने सब्र इस्तकामत से काम लेना है, तभी अल्लाह मुझे सब चीज़ों से निकालेगा। फिर क्या पता कि आगे जाकर मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ। लेकिन इन खुशियों के आने तक मैंने एक इम्तहान देना है। फजर की आंखें नम हुई। अल्लाह तुम्हारे सब्र पर तुम्हें ढेरों आजमाइशों से बगैर किसी नुकसान के गुजारे, आमीन। आयरा की बात पर उसने भी जेर लब आमीन कहा। अच्छा सुनो, एक बात तो मैं बताना भूल गई। क्या हुआ, सब ठीक है? फजर ने हैरान होकर उससे पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तुम कल तैयार रहना और साथ मेरे स्पाइडरमैन को भी तैयार करके आना, क्योंकि सुबह हमने कहीं जाना है। कहाँ जाना है आयरा? फजर उसकी बात पर हैरान हुई। बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तुम दोनों तैयार रहना, मैं लेने आऊँगी। आयरा ये कहते हुए जल्दी से कॉल काट चुकी थी और फजर शीशोबंद में खड़ी क्यारी में मौजूद फूलों को देखने लगी। हाशिर ताबिश को बार बार फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, जो वो बिल्कुल भी नहीं उठा रहा था। वो सुरमई रंग की आधी आस्तीनों वाली शर्ट पहने, बाल माथे पर फैलाए ढीले ढाले अंदाज में अपने घर के लिविंग रूम में मौजूद सोफों पर टांग ऊपर किए बैठा था। उसके सामने बड़े मग में ब्लैक कॉफ़ी थी। वो बार बार मोबाइल की तारीख स्क्रीन को देखने में मगन था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी लेकिन अभी तक ताबिश से राब्ता ना हो सका था। उसने एक बार फिर कॉल मिलाने की कोशिश की।
और कॉल उठा ली गई थी। ताबिश, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान हो रहा था। हाशिर ने कॉल लगते ही उसे डांटना शुरू कर दिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि तुम मेरी तरह फारिग नहीं हो, हजार काम होते हैं। हाशिर ने नफी में सर हिलाते उसका जवाब सुना। वो क्यों भूल गया था कि ताबिश उससे नाराज है। तुम पागल तो नहीं हो गए? हाशिर ने अपना सर पकड़ते कहा। नहीं, बस मैंने सोच लिया कि अब से मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। हाशिर को उसकी आवाज़ में कुछ अफसुर्दगी की झलक महसूस हुई थी। अच्छा मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दे। पता कब जाना है? उसने अपने सामने टेबल पर पड़े ब्लैक कॉफ़ी के मग को उठाया था। नहीं, मुझे नहीं जाना आप कहीं। हाशिर उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया क्या हाशिर उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, लोगों की बीवियां नखरे करती हैं और इधर मेरा दोस्त मेरे साथ कर रहा है। मेरे भाई, अब तो मैं मान गया, अब क्या मसला है? ताबिश एक पल को रुका था। मेरे भाई, मुझे तो तेरी बीवी के लिए अफसोस हो रहा है। बेचारी कैसे रहेगी तेरे साथ? हाशिर उसकी बात पर दबा दबा हंस दिया। वो बात का मसला है, अभी इसे छोड़ो, बस तुम मान जाओ यार। ठीक है, लेकिन तुमने अपना हाथ तंग नहीं करना। मुझे ये नहीं कहना कि मत लो, ये मत लो, फजूल खर्ची मत करो। हाँ तो भाई, मेरे मेहनत की कमाई है, अब ऐसे तुम्हें उड़ाने थोड़ी दे सकता हूँ। हाशिर ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन चलो खैर है, गुस्ताखी माफ। उसकी बात पर हाशिर दोबारा मुस्कुरा दिया। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा ताबिश अलवी? हाशिर ने एब्रो आपस में भींचे थे। किसने कहा चुकाने को? ताबिश का अंदाज सवालिया था, जिस पर हाशिर हंसने लगा। ताबिश उसके हंसने पर दोबारा कहने लगा, हाशिर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा। मेरे अल्लाह तौबा, जो मैं ऐसा करूँ। ताबिश उसकी बात पर जोर से चीखा था। ये की ना बात। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहो। हाशिर को उसकी बात पर हैरानी हुई। क्या मतलब? तुम कहाँ हो इस वक्त? वो सोफों से उठा और अपने हाथ में पकड़ा मग टेबल पर रखते पूछा। तुम्हारे घर के रास्ते पर। मैंने सोचा था कि तुम्हें घसीटते हुए ले जाऊंगा, अगर तुम ना माने तो, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि तुम खुद ही लाइन पर आ गए, और तुम्हें इस लाइन पर लाने के लिए मेरा एक्टिंग करना बहुत ज़रूरी था। हाशिर उसे कुछ कहता, इससे कबल ही उसने कॉल काट दी थी। आयरा रामिस की उंगली थामे अपने साथ लिए आगे चल रही थी, जबकि फजर उनके पीछे पीछे थी। उसे किसी का फ़ोन आ गया था, वो सुनने रुक गई। आयरा और रामिस एक स्टॉल की जानिब खड़े थे। आयरा अपने लिए परफ्यूम देख रही थी, जबकि रामिस इधर उधर देख रहा था। अल्लाह अल्लाह करके उसे एक परफ्यूम पसंद आया, तभी कोई उसके बराबर में आ खड़ा हुआ। आयरा ने जैसे ही वो परफ्यूम पैक करने के लिए रखवाया, तभी उस शख्स ने वो उठा दिया और उसकी खुशबू अपने हथेली पर स्प्रे करके सूंघने लगा। एक दिलफरेब महक पूरे माहौल में रच बस गई थी। आयरा ने उसे वो परफ्यूम उठाते देखा तो कहने लगी, इसने अभी शख्स का चेहरा देखा नहीं था। जनाब, ये मैं ले चुकी हूँ। क्या आपने इसकी पेमेंट कर दी है? इसे अपने बराबर में आवाज़ गूंजी तो सर उठाकर देखा, वो जहाँ थी वहीं रह गई। इसके साथ कुछ फासले पर ताबिश खड़ा था। तुम यहाँ भी पहुँच गए मेरे पीछे? ताबिश ने सर उठाकर देखा तो हैरान हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने परफ्यूम वापस अपनी जगह पर रखा और पेट पर हाथ जमाते उसे घूरने लगा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो मिस्टर। आयरा भी उसी की तरह दो बदो बोली। रामिस इन दोनों को देखे जा रहा था, जो एक दूसरे को घूरने में मगन थे। हेलो मिस, आप कोई मिस वर्ल्ड नहीं है जो कि आपके पीछे यूं आऊंगा। ताबिश ने तमस्कुराना अंदाज में कहा। अब मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मेरा पीछा करती हुई आई हो, या फिर तुम कोई एजेंट हो, या फिर चोरी करने की गर्ज से आई हो? देखो, अगर तुम्हारा चोरी का इरादा है ना, तो फिर इसे दरगुजर कर दो, क्योंकि एक काबिल पुलिस ऑफिसर के यहाँ मौजूद होते हुए तुम बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ, तुम्हारी तरह लोगों की पसंद की हुई चीज़ों पर डाका डालने नहीं। और क्या कहा? काबिल पुलिस ऑफिसर कहाँ है? मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। आयरा ने अपनी नज़रें दाएं बाएं दौड़ाते कहा। जब ताबिश ने देखा वो नज़रें घुमा रही है, तो उसने कहा, दाएं बाएं नज़र घुमाना बंद कर दो, सामने देखो, तुम्हारे सामने ही काबिल पुलिस ऑफिसर। आयरा ने सर से पैर तक उसे देखा, फिर जोरदार हंसी। वैसे लगते तो नहीं काबिल ऑफिसर, लेकिन चलो यकीन कर देती हूँ। ताबिश ने उसे गुस्सैले अंदाज में देखा, लेकिन सब्र का पैमाना पकड़े रखा। आयरा की नज़र दोबारा इस परफ्यूम पर पड़ी तो उसे याद आया कि वो किस वजह से लड़ रही थी। देखो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है। ताबिश अलवी। मेरा नाम ताबिश अलवी है। ताबिश ने बीच में उसकी बात काटते कहा, तो आयरा घूरने लगी। मेरी बला से, जो भी तुम्हारा नाम है, ताबिश अलवी या फिर जगूटा जिन, मैंने तुम्हें बस ये कहना है कि ये मैं ले चुकी हूँ, इसलिए अब तुम कुछ और ढूंढ लो। ताबिश उसकी बात पर एक इंच आगे बढ़ा। क्यों भाई, तुमने इसे छू लिया तो क्या अब ये तुम्हारा हो गया? हाँ, यही समझो। इन दोनों को हम यहाँ छोड़कर कुछ फासले पर जाते हैं, जहाँ हाशिर इधर उधर देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर फजर पर पड़ी, जो शायद किसी की तलाश कर रही थी, पर वो शायद उसे मिलकर नहीं दे रहे थे। फजर की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे देखने लगी। हाशिर को सोचकर उसकी जाने बढ़ा। हाशिर को अपनी तरफ बढ़ते देखकर फजर बखूबी देख रही। जब वो उससे कुछ फासले पर खड़ा हुआ तो उसने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हाशिर ने उसकी जानिब देखा। वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ? जी, मैं अपनी दोस्त के साथ आई थी।
जो न जाने अब कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही। फजर ने एक नज़र उसे देखा, फिर आयरा की तलाश में नज़र दौड़ाने लगी। यही होंगी आप, परेशान मत हो। हाशिर ने उसके चेहरे पर परेशानी की रमक महसूस की। फजर कुछ कहती इसी इस नाम में से रामेश खुद की जानिब आता दिखाई दिया। रामेश, आप लोग कहाँ हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। वो हाशिर को भुलाए अब रामेश की तरफ मुतवज्जा थी। मम्मा, हम लोग वो इधर है ना, खाला आयरा वहाँ किसी अंकल से लड़ रही हैं। क्या? किससे लड़ रही हैं? फजर ने रामेश के कंधे पर हाथ रखते पूछा। पता नहीं, रामेश ने नफी में सर हिला दिया। अच्छा चलो मेरे साथ, कहाँ है वो? फजर रामेश के साथ चली गई, जबकि हाशिर वहीं साकित और जामिद खड़ा था। वो एक लफ्ज़ मम्मा पर बुरी तरह चौंका था। काश जो सोच उसके दिमाग में अपने बीच बो रही थी वो गलत हो, असल हकीकत कुछ और हो। वो नफ़ी में सर हिलाते फजर को पीछे वो नफ़ी में सर हिलाते फजर के पीछे गया था। हाशिर और फजर दोनों एक साथ आए तो उन्होंने देखा ताबिश और आयरा एक दूसरे को कत्ल करने वाली नज़रों से घूर रहे थे। मम्मा देखेंगे, लड़ रहे हैं। जहाँ लफ्ज़ मम्मा पर हाशिर को यकीन हो चला था, वहीं ताबिश ने भी एक झटके से पहले फजर फिर रामिस को देखा। एक मिनट, अभी इस बच्चे ने क्या कहा? मम्मा हैं? ताबिश ने हैरान होकर हाशिर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। ये फजर को मम्मा क्यों बुला रहा है? ताबिश ने हल्की आवाज में बड़बड़ाते खुद से पूछा, जो कि आयरा ने बखूबी सुन ली। इस अब अपनी सगी माँ को मम्मा नहीं बोलेगा तो क्या चाची बोलेगा? ताबिश ने हैरान भरी नज़रों से रुख उसकी जानिब किया, जैसे उसने जो भी सुना हो वो गलत हो। उसने अपनी नज़रों का इर्तिकाज़ हाशिर की जानिब किया, जो कभी रामिस तो कभी फजर को देख रहा था। क्या मतलब, ये नन्हा सा बच्चा आपका है? आप शादीशुदा हैं? उसने हस्बे आदत चीख कर कहा। उसकी चीख से आयरा घबरा कर उसे देखने लगी। अरे तुम चीख क्यों रहे हो? हम तुम्हारे पास ही खड़े हैं, आयरा ने बुरा मनाते कहा। इसकी बात सुनी अनसुनी करते ताबिश ने एक बार फिर फजर से पूछा, बताए ना फजर, आप शादीशुदा हैं? इसे जैसे यकीन करने में दुश्वारी का सामना बढ़ रहा था। जी ताबिश सर। फजर खुद पर किसी की नज़रें महसूस कर रही थी। उसने हल्का सा रुख मुड़कर उस जानिब कनखियों से देखा तो हाशिर अब रामिस को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा तासुर था जो फजर समझ नहीं सकी। ताबिश अब धीरे धीरे कदम उठाता हाशिर की जानिब आया और हल्के से सरगोशी नुमा अंदाज में कहा, हाशिर बेटा, तेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया। इसकी बात पर हाशिर ने उसे गुस्से से देखा और वहां से चलता बना। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। हाशिर खामोशी से गाड़ी चलाने में मगन था, जबकि ताबिश बार बार मोहतात नजरों से उसकी जानिब देख रहा था। हाशिर के चेहरे पर अब भी गहरी संजीदगी थी। ताबिश ने बिलाखिर हिम्मत मुजतमा की। शेर की कछार में हाथ डालने का सोच ही लिया। वैसे ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि फजर यूं अचानक से शादीशुदा निकल आएगी। हाशिर बंद मुट्ठी अपने लबों पर सजाए बैठा था। उसने ताबिश की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। चलो कोई ना, फजर ना सही तो कोई और देखना, मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी लड़की यूं चुटकी बजाते ही लाइन लगा दूंगा, बस तुम हुक्म करो। हाशिर ने गुस्से से उसकी जानिब देखा, मगर बोला कुछ नहीं। अरे भाई, मुझे ऐसे घूरने से अब क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। ऐसी हकीकत थोड़ी बदलेगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अरे दफा करो इसे। मैं हूं ना, अच्छी से अच्छी और प्यारी सी प्यारी लड़की तुम्हारे पास ले आऊंगा। ताबिश ने आंख बंद करते हुए उसे छेड़ा था। हाशिर ने अब के दोबारा उसे घूरा। औच, यानी मेरा मामला जरा संजीदा है। ताबिश उसकी जानिब देखते कहने लगा, अच्छा छोड़ो इन लड़कियों को, मैं ना तुम्हें एक अच्छा सा गाना सुनवाता हूँ। ये कहते उसकी उंगली गाड़ी में मौजूद टेप की जानिब बढ़ी तो हाशिर की आवाज़ आई, ताबिश अलवी, मैं कह रहा हूँ कि खामोशी से बैठो वरना अच्छा नहीं होगा। ताबिश को उसकी गौसीली आवाज़ सुनकर हंसी आई, फिर कहने लगा, यार बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए मुझे। एक छोटे बच्चे ने तुम्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया, वो भी पल भर में। ताबिश अलवी, क्या तुम थोड़ी देर खामोश रहकर मुझ पर एहसान करोगे प्लीज़? अब के ज़रा हाशिर कंट्रोल करते बोला। अच्छा ठीक है, हो जाता हूँ खामोश, ताकि तुम आराम से अपनी नाकाम मोहब्बत पर कुछ देर के लिए सही पर सही से शौक तो मना सको। जाओ, इजाज़त देता हूँ तुम्हें अपने शौक मनाने की। वो कहते ही दोबारा अपनी उंगली टेप की जाने बढ़ाने लगा और बटन दबाकर गाना लगा दिया। चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे। इस गाने के बोल सुनकर हाशिर ने एक झटके में गाड़ी रोक दी और अब कातिलाना नजरों से ताबिश को देखने लगा, जो बाहर निकलने की कोशिश में जुटा था। काफी कोशिशों के बाद भी जब दरवाजा ना खुला तो ताबिश ने अपनी नजरों का रुख उसकी जानिब किया। वो अभी ऐसे ही खामोश लेकिन गौसीले नजरों से देखे जा रहा था। अब ऐसे तो मत देखो मुझ नन्ही सी जान को, मैंने जानबूझकर थोड़ी लगाया है कि ये गाना तो अपने आप ही लग गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसने रोती शक्ल बनाकर हाशिर से कहा तो उसने सर झटका और बगैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ा ले गया। ताबिश ने शुक्र करने वाले अंदाज में चेहरे पर हाथ फेरा और दूसरी जानिब देखने लगा। फजर और आयरा अभी तक उसी शॉपिंग मॉल में थे। आयरा के हाथ में 2-3 बैग थे, जबकि फजर बस रामिस का हाथ पकड़े चल रही थी। वो वहां होकर भी ना थी, क्योंकि उसका जहन कहीं और था। वो एक लंबे सोचों के भंवर में फंस चुकी थी। उसे वहां का माहौल कुछ उदास उदास सा लग रहा था। उसे बार बार हाशिर की वो निगाहें याद आ रही थी। उनमें कुछ ऐसा था जिसे समझने की सलाहियत फजर में फिलहाल तो नहीं थी। आयरा ने चलते चलते उसे देखा
फजर, क्या हुआ? कहाँ गुम हो? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? फजर ने उसकी बात सुनी, फिर नफी में सर हिला दिया। कहीं नहीं, बस एक बात से परेशान। वो बेनहानी में न जाने क्या बोल गई, उसे पता ना चला। लो, मुझे बताओ, फिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान करे? आयरा ने उसका कंधा हिलाकर पूछा तो वो हाल में लौटी थी। हाँ, क्या कहा? मैंने सुना नहीं। फजर ने उसकी जानिब देखते पूछा। आयरा ने एक सांस भरी। फजर, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। मुझे बताओ कि क्या माजरा है आखिर? आयरा ने उससे पूछा तो हंसकर सर झटकते कहने लगी। मुझे मुझे कोई रामिस की पुरानी बात याद आ गई थी, इसीलिए। उसने बहाना घड़कर असल बात अपने दिल में ही दफन कर दी। आयरा लम्हे भर को से देखती गई। वो समझ गई कि फजर असल बात छुपा रही। मुझे मालूम है फजर, ये सब जो कुछ तुमने कहा वो झूठ है। असल बात तो कुछ और है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जब तुम खुद से कुछ नहीं बताओगी तो मैं भी कुछ नहीं पूछ रही। ये कहते उसने फजर के गिर्द बाजू हमाइल किए, फिर रामिस की उंगली दूसरे हाथ में थामे वो आगे बढ़ गई थी। सिराज अड्डे के बाहर वाले हिस्से में दाखिल हुए तो देखा हादी हमेशा की तरह लड़कियों को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाने में कुछ आदमियों की मदद कर रहा था। वो हाथ पुष्ट पर बांधे लबों पर तंज से भरपूर मुस्कुराहट लिया आहिस्ता कदमों के साथ उसके सामने जा खड़े हुए। हादी ने काम रोककर उन्हें देखा। उसे बाप की आंखों में खुद के लिए नापसंदीदगी साफ दिखाई दे रही थी। जब से दाखिल हुए हो यही बेकार से काम किए जा रहे हो, तुम्हें कोई मर्दों वाला काम नहीं दिया गया? हादी के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। ऐसा है कि खास लोग हमेशा आजमाए जाते हैं। ये मेरी आजमाइश है, एक ना एक दिन तो कामयाब हो ही जाऊंगा। फिर आप देखिएगा, मर्दों वाला काम भी कर लूंगा। सिराज ने उसके कंधे पर हाथ रख के झटका दिया। तुम जितना चाहे खुद को दिलासा देना चाहो दे सकते हो। हकीकत वही है जो सामने है। मेरी बात मानो तो निकल जाओ यहाँ से, अब भी मौका है। कब तक यूं लड़कियों के बीच में बैठ कर घूमोगे? वो अपनी बात कहने ही लगे थे जब अकब से हादी की आवाज सुनाई दी। आपको शायद ये भूल रहा है कि मैंने एक दिन आपसे कहा था कि मैं आपका ही बेटा हूँ और आपकी तरह भी जिद्दी। इसी तरह जो इसीलिए जो भी आपने कहा इसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिराज मुड़े और बाजाबता उसे देखा। फिर तुम्हें चाहिए कि कुछ मर्दों वाला काम करो, या फिर यूं कहो कि पिस्तौल थामने से डरते हो। आखिर पिस्तौल पकड़ना बच्चों का खेल थोड़ी। वो हंसे और अपनी राह की जानिब गामजन हुए। हादी ने गुस्से से मुट्ठी भींची और रुख फॉक्सी के कमरे की जानिब किया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो फॉक्सी अपने चाकू से खेलने में मसरूफ थी। वो उसकी मौजूदगी पहचान चुकी थी। अरे, हादी सुल्तान आए हैं। हादी ने उसकी बात को दरगुजर किया और सीधा उसकी मेज के सामने जा खड़ा हुआ। मुझे कुछ मर्दों वाले काम दो। किसी ने बहुत बुरी तरह से मेरी मर्दानगी पर चोट की है। मैं इस इंसान को बताना चाहता हूँ कि कौन कितने पानी में है। फॉक्सी के लब मुस्कुराहट में ढले मगर मास्क होने की वजह से हादी देख नहीं सका था। यानी तीर निशाने पर लग चुका है, वो हल्की बुड़बुड़ाहट से बोली। इतना कि उसे खुद भी आवाज सुनाई ना दी। सर झटका अपनी कुर्सी से उठी, फिर हादी के सामने खड़े होते चाकू उसके गाल पर जबो दिया था। कत्ल करना होगा, बोलो मंजूर है? वो आहिस्ता आहिस्ता चाकू पूरे चेहरे पर फेर रही थी। हादी आंखें बंद किए सर इस बात में हिला गया। मंजूर है। फॉक्सी के अंग अंग में तमानियत का एहसास जागा। वो अपनी जगह पर बैठी थी। ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हें आगाह कर दूंगी। अपनी बात कहते उसे जाने का अंदिया दिया। हादी सर झुकाए चला गया तो उसकी बुड़बुड़ाहट ऊंची हो गई। बेचारे सिराज अंकल, बहुत अफसोस हुआ मुझे आपके लिए। रात को बीते हुए काफी वक्त हो चला था। फजर अपने पलंग पर लेटने के अंदाज में बैठी थी जबकि रामिस तब से आया थका सो गया था। फजर ने अपने बराबर पड़ी एक छोटी सी मेज से अपना मोबाइल उठाया और उसमें यूं ही व्हाट्सएप खोलकर देखने लगी। जो ही उसकी नज़र हाशिर सर का नाम की चैट पर पड़ी, उसकी उंगलियों ने बिना कोई तरदीद के उस नाम पर रख दी थी। चैट खोले फजर बिना पलके झपके देखने लगी। वो आप मुस्कुराए जा रही थी। उसके अंदर पिछले कुछ अरसे से एक नया एहसास जाग रहा था। वो एहसास जिसे महसूस करते ही अच्छे अच्छों की नींद हराम हो जाती है। इस एहसास से एक बार वो उस्मान की वजह से आशना हुई थी और अब वही एहसास उसे हाशिर के लिए महसूस होने लगा था। उसे पता ही ना चला और हाशिर ने उसके दिल पर अपने नाम की मोहर लगा दी। पहले तो वो एक लगाव महसूस करने लगी थी, पर ये शायद उससे बढ़कर था। ये एक मामूली सा लगाव बिल्कुल ना था, बल्कि ये तो मोहब्बत की एक नई मंजिल थी जिसका उसे वहमो गुमान भी ना था। मंजिल की दूसरी जानिब भी वैसा ही हाल था। हाशिर माथे पर बाल बिखराए पलंग से टेक लगाए फजर नाम की चैट खोले बैठा था। वो उसके लिखे अल्फाजों को अपनी उंगली की पोरों से छू रहा था। उसके जहन में आज का मंजर अपनी ताबनाकी से घूम रहा था। एक लफ्ज़ मामा जैसे उसके दिमाग में कहीं अटक गया था। वो इस नाम पर अपनी उंगली जमाए बड़बड़ाने लगा। मुझे लगा, मुझे नहीं पता था कि ये मोहब्बत कैसी होती है। मोहब्बत तो इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब से मैंने इसे देखा मेरे अंदर एक नया एहसास जागने लगा। मैं अपने आप ही उसे याद करके मुस्कुरा दिया करता था। वो जब भी ऑफिस ना आती तो मेरे अंदर कहीं बेचैनी सी पनपने लगती। मैं बहुत खुश था, इतना खुश कि अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हर पहाड़ सर करने को तैयार था। लेकिन आज जो क़यामत ख़ेज़ बात मेरे ऊपर आया हुई है, इसने मेरी सारी ख्वाहिशों को, सारी खुशियों को आग की जलती भट्टी में डाल दिया है।
मुझे नहीं मालूम कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जब पता चला कि वो शादीशुदा है तो मेरा दिल जैसे उस बात को यकीन ही नहीं कर पा रहा। वो तो अब भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने काफ़ी मुश्किलों से सही, लेकिन अब समझा दिया। लेकिन दिल का क्या है, वो कब अपने मालिक की सुनता है, जो अब सुनेगा। दिल तो अब भी उस जालिम की तमन्ना कर रहा है, उसे पुकार रहा है। पर खैर, अब मैंने जो उससे अहद किया है, एक पुख्ता अहद जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी निभाने की कोशिश करूंगा। मैं खुद उससे दूर मैं खुद को उससे दूर कर दूंगा, इतना दूर कि जितना सहने में मेरी और उसकी हिम्मत हो। इसने एक झटके से अपना मोबाइल फेंकने के से अंदाज में पलंग पर डाला और सोने की नीयत से लेट गया, लेकिन नींद उसकी पूरी आंखों से कोसों दूर थी। वो जब आंखें बंद कर रहा था तो उसके चेहरे के सामने वही शहद आंखों वाली लड़की मुस्कुराकर उसे देखने लगती। उसे सर झटका और अपना जहन कहीं और लगाने की कोशिश करने लगा। हाशिर ने बहुत सारे फैसले एक पल में तय कर दिए थे। जिस सुकून को वो महसूस करना तलाश करना चाह रहा था, वो शायद उसे कभी ना मिलने वाला था। आज सुबह का मौसम काफी दिलफरेब था। वैसे तो कराची में अमूमन बारिश कम ही होती थी, लेकिन जब होती तो हर सू एक सूनी सी महक छा जाती थी। सड़क पर लोग अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थे। तो उसी सड़क के सामने वाली इमारत में जाऊं तो वहां भी कुछ लोग अपने सर झुकाए काम में मगन थे, जैसे उन्हें दिल लुभाने वाले मौसम से कोई लगाव ना हो। ऐसे में फजर सफेद रंग के शलवार कमीज पहने सब, जिसके गले पर स्याह काम था, बाल ऊंची पोनी में मुकीद किए काम करने में मगन थी। सुबह के 10 बजने को थे और हाशिर का अब तक कोई नामो निशान तक ना था। फजर ने मुस्तरिब नजरों से घड़ी देखी, फिर दरवाजे की जानिब देखा तो हाशिर मोबाइल पर मसरूफ चला आ रहा था। किसी एहसास के तहत उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने ही फजर को खुद की जानिब देखता पाया था। एक पल को उसकी भूरी आंखों में जख्मी सा एक तासुर उभरा था, जिसको उसने फौरन ही चेहरा नीचे करके छुपा दिया था और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। फजर उसकी पुश्त को देखती रही, यहाँ तक कि वो कमरे में गुम हो गया। फजर सर झुकाए बेमकसद कीबोर्ड पर हाथ फेरने लगी थी। हाशिर जैसे ही कमरे में आए तो वो सामने देखा, ताबिश बैठा मोबाइल चला रहा था। मेरी रूह तुम्हारे अंदर आ गई और तुम्हारी रूह मेरे। जब ताबिश ने उसकी आहट महसूस की तो कहा। उसने कोट उतार कर स्टैंड पर लटकाया और टाई ढीली करके आस्तीन को कोहनियों तक मोड़े दब से कुर्सी पर बैठा, फिर बोला, यार, आज आने का बिल्कुल दिल नहीं था। ताबिश ने मोबाइल टेबल पर धरा था। माशाल्लाह, माँ सदके, वाकई मेरी रूह आ गई है तुम में। कसम से ब्रो, मेरा भी दिल नहीं करता ऑफिस आने को। वो तो तुम्हारे बारे में जब सोचता हूँ तो कि बेचारा अकेले कितने काम करता होगा, तो दिल में कहता हूँ कि भाई काम का मामला है, जाने दो, इसीलिए आ जाता हूँ। हाशिर ने उसकी सारी बात खामोशी से सुनी, फिर झटक कर लैपटॉप की स्क्रीन खोलकर उसे बेमकसद देखने लगा। ताबिश को महसूस हुआ जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि उसकी आंखें रात की बेख्वाबी के बारे में बता रही थी। हाशिर, तबीयत खराब है तो रहने दो, आओ घर चलते हैं, तुम आराम कर लेना। हाशिर ने उसकी जानिब देखा, फिर जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं ठीक हूँ। ताबिश उसे परेशान कुन नजरों से देखने लगा। कुछ देर बाद हाशिर फोन उठाए किसी फाइल का पूछ रहा था। मिस कवर, जो ब्लू कवर वाली फाइल्स थी वो भेजें, ये कहते वो रखने ही वाला था कि जब पीछे से कोई लड़की बोली, पर सर वो तो फजर जुल्फ़िकार के पास है, 1 मिनट मैं उसे कहती हूँ वो आपके पास ले आए। नहीं, उन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसा करें कि वो फाइल्स लेकर मेरे कमरे में आए। ताबिश ने बगौर उसकी बात सुनी, फिर कहा कुछ नहीं, क्योंकि अभी पूछना बेकार था और वैसे भी वो कहाँ बताने वाला था। वो लड़की कवल फजर के पास आकर उसके सामने खड़ी अब फाइल्स का पूछ रही थी। फजर, हाशिर सर ब्लू फाइल्स का पूछ रहे हैं, क्या वो तुम्हारे पास हैं? फजर ने उसकी बात में इस बात में सर हिला दिया। हाँ, वो मेरे पास हैं, सर ने पिछले हफ्ते ही रखवाई थी, तुम जाओ मैं दे देती। फजर ने मुस्कुराकर अपने मखसूस अंदाज में कहा तो वो लड़की कहने लगी, नहीं हाशिर, सर ने मुझे लाने का कहा है, पर ये तो बहुत ज़रूरी फाइल्स थी, सर ने मुझे कहा कि किसी को ना दूं। फिर फजर ने भव्य चुकाए पूछा, मैंने सर से कहा था, पर उन्होंने मना कर दिया और मुझसे कहा कि मैं ले आऊं। फजर उसकी बात पर परेशान हुई। उसने टेबल पर पड़ी फाइल्स को देखा, फिर वो उठाकर मारे बांधे उस लड़की के हाथ में दे दी। शुक्रिया। वो लड़की मुस्कुराकर वहां से चली गई, जबकि फजर के चेहरे पर परेशानी के नासिर थे। ताबिश हाशिर के साथ उसके ऑफिस में बैठे उसके साथ काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने जैसे ही कॉल यस करते और मोबाइल कान से लगाया, तभी कोई अनजानी और भारी आवाज़ में बोला था, मोहतात रहना, क्योंकि कुछ दिन में तुम्हारे अपने की मौत होने वाली है। ताबिश को हैरानी हुई। कौन था जो ये सब कह रहा था? कोई कौन बोल रहे हो तुम? ताबिश ने गुस्से से पूछा तो हाशिर अपना काम भुलाए उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगा। दूसरी जानिब से एक हंसी की आवाज़ गूंजी, मेरे बारे में तो बाद में जाना ताबिश अलवी, सबसे पहले तो तुम अपने चाहने वालों की हिफाजत करो। मैंने सुना कि तुम पुलिस वाले हो। ताबिश को कुछ समझ न आया कि वो कौन है और क्या चाह रहा है। इससे कबल के ताबिश कुछ कहता दूसरी जानिब से लाइन काट दी गई।
ताबिश अपने मोबाइल की तारीख स्क्रीन को देखे जा रहा था जब हाशिर की आवाज़ गूंजी। कौन था? ताबिश ने उसकी जानिब देखा और फिर नफ़ी में सर हिला दिया था। मुझे नहीं मालूम। वो कमरे में चक्कर काटते अपनी माँ को फ़ोन मिलाने लगा था। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बेटा? मारूफ ने कॉल उठाते ही उसे पूछा। अम्मा आप ठीक हैं? मारूफ को ताबिश की फिक्रमंद आवाज़ सुनाई दी। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, आयरा से बातें कर रही थी, वो अभी आई हुई है। ताबिश ने उनकी बात पर सुख का सांस लिया था। अच्छा मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, अभी ज़रा मसरूफ़ हूँ। फ़ोन बंद करते उसने हाशिर की जानिब देखा। मैं आता हूँ कुछ देर तक। हाशिर ने उसकी जानिब देखते इस बात में सर हिला दिया और काम में मसरूफ़ हो गया। ताबिश का रुख अब सफ़ा के कमरे की जानिब था। वो जैसे ही दरवाज़ा खुले अंदर आया तो उसने देखा वो किसी से बात करने में मसरूफ़ थी। सफ़ा ने कुर्सी की जानिब इशारा करके उसे बैठने को कहा और फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ हो गई। ताबिश कुर्सी खींचकर बैठा और टांग पर टांग जमाए उसे देखे गया। सफ़ा ने दूसरी तरफ अलविदाई कलिमात कहे फिर उसे देखते हुए बोलने लगी। क्या हुआ ताबिश? खैरियत से आना हुआ? ताबिश हाँ में सर हिलाते बोला था। अभी कुछ देर पहले मेरे मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। सफ़ा आगे की तरफ झुकी, उसकी बात सुन रही थी। अच्छा फिर? कॉल करने वाले ने मुझे कहा कि मेरे आसपास किसी अपने की मौत होने वाली। ताबिश ने अपनी नज़रों का रुख उसके सफ़ेद हाथों की जानिब किया। मैं यहाँ तुम्हारी खैरियत पूछने आया था इसीलिए। सफ़ा उसकी बात पर हंसी थी। ओ ताबिश, तुम्हें लगा कि वो मुझे मारेंगे? ताबिश ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। कुछ कहने के लिए अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। मेरा वो बाल भी बेकार नहीं कर सकते ताबिश अलवी, वो लोग सिर्फ धमकियाँ ही दे सकते हैं। तो तुम परेशान मत हो। सफ़ा की बात पर उसे ढारस मिली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गर्म धूप से हटाकर गहरी छांव तले खड़ा कर दिया हो। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हिफाजत करो। न जाने क्यों मेरा दिल बार बार घबरा रहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे कुछ गलत होने वाला है, जिससे सबकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। उसने परेशान कुन नज़रों से कहा तो सफ़ा ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, जैसा आप कहें मिस्टर ताबिश अलवी। उसकी बात पर ताबिश के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। कुछ देर बाद ताबिश वापस अपने कमरे की जानिब आ गया तो उसने देखा कि हाशिर की कुर्सी खाली थी और स्टैंड से कोड भी गायब था। उसने अपना मोबाइल निकालकर उस नंबर पर कॉल की तो फिर पीछे से ऑपरेटर की आवाज़ पहुंचने लगी। उसने सर झटकर वहां से निकल गया था। रात के 11 बजते ही सारे सोने की तैयारी में मगन थे। कोई इक्का दुक्का ही लोग थे जो आपस में महवे गुफ्तगू थे। उनमें से वो दोनों माँ बेटा भी थे जो अपने पलंग पर लेटे न जाने कौन सी बात कर रहे थे। मामा नाना ने आपके साथ इतना कुछ किया फिर भी आप में कितना सब्र है, ऐसा क्यों? रामिस ने फजर के हाथ की उंगलियों से खेलते कहा। फजर उसके मासूमाना सवाल पर मुस्कुरा कर कहने लगी। मैं आपको बताऊंगी मैंने ये सब्र करना कहाँ से सीखा। रामिस ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया और उठकर उसके सामने बैठ गया। मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सीखा, मैंने उनके बाबा याकूब अलैहिस्सलाम से सीखा। फजर ने रामिस की जानिब देखते पुरसकून अंदाज में कहा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा से दूर गए तो उनके बाबा याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी हिम्मत न हारी। उन्होंने सब्र किया। उन्हें मालूम था कि एक न एक दिन उन्हें उनका बेटा मिल जाएगा। और देखो हमारे अल्लाह ताला को उनका सब्र कितना पसंद आया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनका बेटा वापस लौटा दिया। फजर ने कुछ पल खामोश रहकर दोबारा कहा। रामिस इस दौरान चुपचाप दिलजोई से अपनी माँ की बात सुनने में मगन था। और मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से सीखा कि चाहे कितने भी मुश्किल में क्यों ना हो आप, अल्लाह ताला पर तवक्कल रखना है और सब्र करना है। अल्लाह पाक आपको इससे ज़्यादा अजर नसीब करेगा जितना आपका सब्र होगा। इससे कई दुगना आपको गिफ्ट मिलेगा। रामिस ने इस बात में सर हिला दिया फिर कुछ याद आने पर पूछने लगा। क्या आपने नाना को माफ़ कर दिया है? हाँ बेटा मैंने उसी वक्त कर दिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया जो इंसान माफ़ करेगा वो सबसे ज़्यादा अजीम है। आयरा सड़क पर खड़ी रक्षा का इंतजार कर रही थी जो उसकी गाड़ी एन वक्त पर धक्का दे गई थी। सामने ही उसके पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद 3 अफराद खड़े थे। इस दौरान कोई शख्स आकर आयरा की जानिब खड़ा हो गया। उसने स्याह रुमाल से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसकी बस आंखें ही झलक रही थीं। वो शख्स आयरा के एक कदम के फासले पर खड़ा उसे पूछने लगा। सुनो लड़की मेरी बेटी कहाँ है? आयरा डर के मारे उछलकर 2-3 कदम दूर हो गई। फिर उसने अपने दाएं जानिब देखा जहाँ जुल्फी स्याह रुमाल नीचे किए उसे पूछ रहा था। लड़की मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फजर कहाँ है? आयरा उसे काफ़ी फासले पर आते बोली। मुझे नहीं मालूम। जुल्फी एकदम से उसकी जानिब आया और पीछे से उसके बाल झगड़ते पूछने लगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद मौका नहीं दूंगा, इसीलिए खामोशी से मुझे उसका पता बता दो, वरना तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। आयरा ने उसकी आंखों में देखा। कहा ना मुझे नहीं मालूम, फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ? आयरा अपने बाल छुड़ाने की दगदो में लगी थी, लेकिन जुल्फी छोड़ने के लिए राजी नहीं था। उसने और जोर से उसके बाल खींचे तो आयरा को आसमान घूमता महसूस हुआ। लगता तू भी उसकी तरह ढीठ है, मजाल है जो एक बात पर मानूं। जुल्फी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते कहने लगा। जब तक बताएगी नहीं मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। आयरा ने झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और जोर का थप्पड़ जुल्फी के गाल पर मारा।
तेरी इतनी जुर्रत, मुझ पर हाथ उठाएगी साली कमीनी। जुल्फी एक उसकी जाने बढ़ा और जोर से आयरा को थप्पड़ मारा। आयरा ने भी उसी वक्त जवाबी वार किया और एक जोरदार थप्पड़ और साथ ही अपना पर्स जिसकी वजह से जुल्फी सड़क पर गिरकर कराहने लगा था। उसके गिरने पर पूरे माहौल में शोर सा उठा था। अरे ताबिश भाई, वो देखें क्या सीन है। इन दो पुलिस एहलकारों में से किसी ने जुल्फी की जानिब इशारा करते कहा तो ताबिश ने पीछे मुड़कर देखा। उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। उसके सामने आयरा किसी को बहुत बेदर्दी से मारे जा रही थी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स उनकी जानिब बढ़ने लगे थे। तब ताबिश ने उन्हें रोका। रुको, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। ताबिश ने देखा आयरा इस आदमी को दोबारा जमीन पर गिराए मारने लगी थी और अपने सामने पुलिस वालों को छोड़कर उसकी जानिब बढ़ने लगा। वो सड़क के दूसरी जानिब खड़ा था। फिर अभी वो सड़क पार कर रहा था कि जुल्फी ने उसकी जानिब देखा और भाग गया। ताबिश ने आयरा के करीब जाकर बोला, माशाल्लाह, जुबान के साथ साथ तुम्हारे तो हाथ पाँव भी बराबर चलते हैं। वो सीने पर बाजू जमाए ताइदी अंदाज में उसकी तरफ देखते कहने लगा, तुम जरा अपने पाँव भी चला लो, क्योंकि तुम्हारे सामने ही एक मुजरिम तुम दबाकर भागा है। उसने आपस में हाथ झाड़ते कहा। ताबिश ने इर्द गिर्द सड़क की जानिब नजरें दौड़ाई। इस सुनसान जगह पर खड़ी क्या कर रही थी वैसे? धूप सेक रही थी। आयरा ने मुंह बनाते कहा, क्यों, घर की छत कम पड़ गई थी क्या? उसने आयरा की जानिब तंजिया नजरों से देखा। नजर नहीं आ रहा क्या गाड़ी खराब है मेरी? धोखा दे गया है, धोखा दे दिया बीच सड़क पर, इसीलिए रक्षा के इंतजार में खड़ी। आयरा ने अपनी गाड़ी की जानिब इशारा करते चलते हुए अंदाज में कहा। एक तो अचानक से जुल्फी ने पंगा ले लिया और फिर ऊपर से ताबिश के सवालात खत्म होने का नाम ना ले रहे थे और उसे शदीद गुस्सा चढ़ा। वैसे ये आदमी क्या कह रहा था? ताबिश ने याद पड़ने पर पूछा। लाइन मार रहा था, आयरा ने सर झटकते कहा, लेकिन ताबिश की अगली बात पर उसे गुस्सा आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, यकीनन इस बेचारे की आंखें खराब होंगी। निकल जाओ यहाँ से, कहीं तुम्हारी आंखें ना फोड़ दूं मैं। मेरे हाथ पाँव के जौहर तो तुम वैसे भी देख चुके हो ना, सकूटा जिन। अल्लाह नहीं, प्लीज मेरी आंखें मत फोड़ना, मैं अंधा हो जाऊंगा। आयरा ने उसकी ओवर एक्टिंग पर तहमुल से देखा। हो गया, अब मैं जाऊं? नहीं, पहले मैं तुम्हें कोई ड्राइव करवा देता हूँ, फिर चली जाना, क्योंकि यहाँ तुम्हें रक्षा वगैरह तो मिलने वाला नहीं। और मेरी गाड़ी, इसका क्या करोगे? आयरा ने सवाली नजरों से उसे देखते पूछा। क्या करना है भाई, अपने पास तो रखने से रहा, किसी मैकेनिक को दिखा दूंगा। ये कहते वो अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया। आयरा इस वक्त अपने कमरे में मौजूद चक्कर काटते फजर को कॉल मिला रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उसे फजर की आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, तुम सुनाओ। मेरा सुपरमैन कैसा है? मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारा सुपरमैन भी ठीक है। यार बहुत याद आ रही है तुम दोनों की। आयरा ने अफसरदा सा अंदाज अपनाया। क्यों? फजर की आवाज़ सवालिया हो गई थी। क्या मतलब क्यों? मुझे तुम्हारी याद नहीं आ सकती? उसके अंदाज पर फजर जोर से हंसी, फिर नफ़ी में सर हिलाने लगी। अरे मेरी प्यारी दोस्त, मजाक कर रही थी। तुम याद कर सकती हो क्योंकि एक तुम ही तो हो जो हमें याद करती हो। आखिर में फजर का अंदाज कुछ संजीदा सा हो गया था। आयरा ने उसके लहजे पर गौर करना चाहा, लेकिन तब ही फजर ने बात पलट दी थी। खैर सुनाओ, क्या कर रही थी? फजर के सवाल पर उसे आज दिन में हुआ वाक़या याद आ गया था। यार मैंने तुम्हें एक बात बतानी। आयरा ने कुछ सोचकर बताने का फैसला कर लिया था। बोलो। आयरा ने गले से थूक निकलते कहा। मुझे अंकल मिले थे, वो तुम्हारा पूछ रहे थे। उसने आंखें बंद की, उसकी गोश गुजार किया। फजर को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है, इसीलिए उसने दोबारा तस्दीक के लिए पूछा। क्या क्या कहा तुमने? आयरा ने उसके अंदाज को देखते दोबारा कहा। हाँ फजर, अंकल मिले थे मुझे। कब? आयरा को उसकी आवाज़ में वाज़ेह घबराहट महसूस हुई। आज ही मिले, उन्होंने मुझे बहुत मारा भी, लेकिन आयरा उसे टहलते हुए बताने लगी। लेकिन क्या आयरा, जल्दी बोलो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, तुम ठीक हो? आयरा उसकी फिक्रमंदी पर मुस्कुरा दी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं तुमसे ज़्यादा वो बात नहीं कह पा रही जो मुझे बतानी है। इसके चेहरे पर वाज़ह देखा जा सकता था कि डर के तासुरात। उसे लग रहा था कि उसकी बात पर उसकी दोस्त बुरा मान जाएगी। आयरा, कह दो जो भी कहना है, वैसे भी अब मैंने उन्हें कहना छोड़ ही दिया है। अब मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। उन्होंने मुझे मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया फजर, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है आज तक मेरे अपने माँ बाप ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मुझे अंकल ने बहुत मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर मैंने भी उन्हें मार दिया। प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना मुझसे। आयरा को अंदेशा हुआ जैसे ये सब सुनने के बाद फजर उससे कतई ताल्लुक़ कर देगी। ये सोचते ही एक खौफ सा उसके पूरे जिस्म पर हावी हो गया, क्योंकि फजर के अलावा कोई उसकी दोस्त ना थी। फजर ने कुछ देर खामोशी का लिबादा ओढ़े रखा। क्या तुम्हें बुरा लगा? आयरा को अपना शक आयरा को अपना शक यकीन में बदलता हुआ महसूस हुआ। नहीं आयरा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मुझे नहीं पता बाबा ऐसा क्यों करें। वो इस बात के लिए इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। आयरा, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। फजर ने अपने गालों से आंसू साफ किए। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। आयरा ने तुर्स लहजे में उससे पूछा। कुछ देर दोबारा फजर खामोश हो गई। इसके बाद रोने की घुटी घुटी आवाज़ सुनाई दी। अरे मुझे जाना होगा।
صبح آفس ہے میرا۔ یہ کہتے اس نے فون بند کر دیا اور بس آئرہ اس موبائل کی تاریک اسکرین میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ حاشر اپنے کمرے میں موجود پلنگ کی پائنتی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سفید آدھی بازو والی شرٹ پہنے، ماتھے پر بال بکھرائے وہ کتاب پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے میں اس وقت اس کا موبائل بجا۔ اس نے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا تو تابش الوی لکھا آ رہا تھا۔ اس نے کال درگزر کی اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ آج اس کا کتاب پڑھنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی چین میسر کیوں نہیں؟ کیا میں نے جو دستبرداری کا فیصلہ کیا، کیا وہ درست ہے؟ اس سوال پر اس نے دل کو ٹٹولا چاہا، لیکن کوئی جواب نہیں بن سکا تھا۔ اگر درست ہے تو مجھے ایک پل کا چین کیوں نہیں مل رہا؟ وہ دوبارہ کیوں مجھے یاد آ رہی ہے؟ اس کا چہرہ کیوں بار بار میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے؟ کیا میں اسے اتنی محبت کرنے لگا ہوں کہ اب ایک پل کے لیے بھی اسے دوری نہیں سہی جا رہی؟ مجھے پہلے کیوں احساس نہ ہوا اس بات کا؟ وہ کتاب کو اپنے برابر میں رکھتے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسی اسلام میں اس کے ٹیرس کا دروازہ بجا اور حاشر نے ایک دفعہ اس آواز کو سنا کر دیا، لیکن مقابل بھی جیسے ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ دستک دی۔ حاشر نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے تابش کو دیکھے ڈر گیا۔ کچھ پل وہ اسے غصے سے دیکھے گیا، پھر بولا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تابش نے مسکرا کر کہا، تم نہ کال اٹھا رہے تھے، نہ میری کسی بات کا جواب دے رہے تھے، اور نہ ہی نیچے کا دروازہ کھول رہے تھے، تو اسی لیے یہاں سے آنا پڑا۔ تھوڑی بہت مشکل تو ہوئی، مگر کوئی بات نہیں۔ حاشر نے اس کی اتنی لمبی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ پلنگ پر نیند دراز آنکھوں پر بازو جما دی۔ ٹھیک اسی پل تابش بھی جم کر کے پلنگ پر بیٹھا تھا۔ حاشر نے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہ ادھر کیوں لیٹ رہے ہو؟ اٹھو یہاں سے اور جاؤ گھر، آنٹی اکیلی ہیں۔ حاشر نے واپس اسی طرح آنکھیں مون لی۔ یہ کیا طریقہ ہے گھر آئے مہمان سے بات کرنے کا؟ تابش نے غصے سے اس سے پوچھا تھا۔ رات کے تیسرے پہر کوئی مہمان نہیں کہلاتا۔ حاشر اسی طرح لیٹے ہوئے بولا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی آنٹی صاحبہ اس وقت اپنے کزن کی طرف گئی ہوئی ہیں، اسی لیے اپنے کان میں یہ بھی ایک بات کہیں سنبھال کر رکھو کہ آج میں یہاں ہی۔ تابش نے اس کی بک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے کہا، لو جی، یہ مصیبت بھی میرے سر رہے گی۔ تابش نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ جی، بجا فرمایا آپ نے۔ 10 منٹ یوں ہی گزر گئے، لیکن ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ حاشر اب پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا کہ تابش اسے جانتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ اپنی نگاہیں اس پر جمائے کہا، لیکن حاشر نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ تابش نے اسے دونوں ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا تو وہ ہوش میں آیا اور حواس باختہ ہو کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے تابش کو دیکھے جا رہا تھا۔ میرے بھائی، میں بھی تو وہی پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ کیوں مجنوں کی طرح بیٹھ کر لیلا کی یاد میں کھوئے ہو؟ حاشر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ حاشر نے سر پکڑتے کہا تو تابش کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ گیا۔ جب سے میں نے فجر سے قطع تعلق کیا ہے، تب سے ہی میرے دل کو چین نہیں مل رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں نہ سوچوں، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر تابش کی طرف دیکھا تو وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نہ کہتا تھا کہ محبت اچھے اچھوں کو گدھا بنا دیتی؟ میں صحیح تھا، پر خیر انشاءاللہ اس چیز کا حل ہم نکال لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ میرے بھائی، تمہیں ایسے اداس دیکھ کر تو مجھے بھی رونا آ گیا، دیکھو ذرا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حاشر نے زور سے اس کے سر پر تکیے کا وار کیا۔ میں یہاں پریشان بیٹھوں اور تمہیں مذاق سوچ رہا؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو کیا، اب میں بھی تمہارے انداز میں بیٹھ کر مجنو بن کر لیلا نام کی مالا جپتا رہوں؟ تابش نے سر جھٹک کر آخر میں دوبارہ کہا، مجنو کی اولاد نہ ہو تو۔ حاشر اس سے ناراض ہو کر بیٹھ کے لیٹ گیا تھا۔ مجھے نخرے تو ایسے دکھا رہا جیسے میں اس کی لیلا ہوں۔ وہ بھی بڑبڑا سونے لگ گیا تھا۔ زلفی ایک سستے ترین ہوٹل میں بیٹھا، وہ یہاں آج صبح سے ہی آیا ہوا تھا۔ اس کمرے میں زیادہ کچھ نہ تھا، بس ایک چھوٹا پلنگ اور اس کے برابر میں 2 سائڈ ٹیبل، ایک الماری، باقی کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ زلفی اپنے کپڑے اپنے بیگ سے نکال کر اس کمرے میں موجود الماری میں رکھ رہا تھا۔ جب وہ سارے کپڑے رکھ چکا تو آپ کپڑوں کو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، زلفی کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہے نہیں۔ اس کے چہرے پر اب بھی گہرے زخم کے نشانات تھے۔ وہ اب ایک دن پہلے ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ یہ منظر صبح کا ہے، پرندے اب اپنی آب و ہوا کی تلاش میں تھے، آسمان پر آج کوئی بادل نہ تھا، چاروں طرف سورج نے اپنے ہونے کا احساس جگا رکھا تھا۔ ایسے میں زلفی اپنے کسی دوست کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ آج اس کا دل کارڈ کھیلنے کا بھی نہیں تھا، وہ کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو زلفی؟ اس کے دوست نے کارڈ پر جھکتے کہا، مالک نے اپنے بندے میرے گھر پر بھجوا دیے تھے، ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی اور چلے گئے، وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا۔
क्यों, ऐसी कौन सी जगह गए थे? मैं अपनी बेटी का पता करवाने गया था, जुल्फी ने उसकी तरफ देखते कहा। वो शख्स कार्ड अपनी जगह पर रखते सीधे होते बोला, शुक्रिया कर फिर उसका, आज तेरी बेटी ने तुझे बचा लिया। जुल्फी खामोश न जुल्फी खामोश नजरों से उसे देखेगी। पर अब क्या इरादे हैं तेरे? जुल्फी उसके सवाल पर मुस्कुरा कर बोला, मैंने कराची से जाने के सारे इंतजाम कर दिए हैं। अब मैं कल सुबह से ही यहाँ से चला जाऊंगा, किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना सके। वो दोनों हाशिर के कमरे में मौजूद थे। ताबिश से खुले बटन वाली शर्ट पैंट पहने, बाल माथे पर पीछे किए, टांग पर टांग जमाए पुरसोच नजरों से हाशिर को देख रहा था, जिसने सफेद शर्ट की आसीनें कोहनियों तक मोड़ रखी थी। बाल माथे पर सेट किए वो इंटरकॉम पर बात करने में मगन था। मिस कवल, आप फजर से कहें मैंने जो आपको काम दिया है वो अभी करके मुझे मेल करें। ओके सर। उस लड़की ने इतना कहते ही फोन रखा और फजर की जानिब पड़ गई थी। तुम फजर को इग्नोर क्यों कर रहे हो? ताबिश ने सवालिया नजरों से उसे पूछा तो हाशिर ने मेज पर नजर आते अपने एक्स को देखते कहा, मैं इसे इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि अवॉइड कर रहा हूँ। इसके जवाब पर ताबिश कुछ बोल ना सका, जैसे जुबान ने साथ छोड़ दिया हो। कुछ देर कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रही। हाशिर सर झुकाए लैपटॉप पर काम कर रहा था और ताबिश भी उसी के साथ बैठा था। करीबन आधे घंटे बाद हाशिर ने इंटरकॉम उठाया और कान से लगाए कहने लगा, कमल, आप फजर से कहें जितना भी काम हुआ है मुझे इसकी अपडेट दें। सर, मगर फजर तो चली गई बगैर बताए। मैंने सब लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि उसे किसी की कॉल आई थी, वो परेशान लग रही थी। इसके बाद हाशिर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? कब गई फजर? ताबिश की नज़रें भी हाशिर का अहाता करने लगी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ताबिश और हाशिर की नज़रों का तबादला हुआ। सर, बस कुछ मिनट ही गुजरे होंगे, मुझे लगा उसने आपको बता दिया होगा इसीलिए। कमल ने घबराहट के आलम में बस इतना ही कहा, अच्छा ठीक है। हाशिर ने इतना कहते इंटरकॉम जगह पर रखा। कमरे में एकदम परेशानी ने अपने पंजे गाड़ दिए थे। हाशिर अपनी जगह से उठा और कमरे में चक्कर काटने लगा। ऐसे कैसे वो बगैर बताए जा सकती है? इससे पहले ताबिश उसे जवाब देता उसके नंबर पर फजर की कॉल आने लगी। फजर मुझे कॉल कर रही है, उसने हाशिर की तरफ देखते कहा। तो उठाओ ना, किसका इंतजार कर रही हो? हाशिर ने उसे डबट कर कहा। उसने सर हिलाते हुए मोबाइल स्पीकर पर किया। ताबिश सर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। फजर की रोती हुई आवाज़ मोबाइल के स्पीकर पर गूंजी थी। वो दोनों हैरान परेशान एक दूसरे को देखने लगे। जी बोलें फजर, मैं सुन रहा हूँ। कुछ देर पहले फजर भूरे रंग की शलवार कमीज में मौजूद बाल पोनी में जकड़े कंप्यूटर पर नजरें जमाए बैठी थी। वो हाशिर का कोई काम करने में मगन थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा कॉल करने वाली हिबा थी। आपी आपी, फजर के कान में हिबा की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी तो फजर एकदम परेशान हुई। क्या हुआ हिबा, तुम ठीक तो हो ना? उसने फिक्रमंदी से पूछा। आप ही रामिस, हिबा ने इतना ही कहा और हिचकियां लेकर रोने लगी। क्या हुआ हिबा, रामिस को प्लीज बताओ वो ठीक तो है ना? बच्चा तेज होती धड़कन के साथ बोली, आपी मैं और रामिस हम ना पार्क तक गए थे आपी। वहाँ आपके बाबा दो बंदों के साथ आया और रामिस को ले गए। क्या मतलब ले गए? हेबा ये क्या बोल रही हो तुम? आपी प्लीज आप जल्दी आ जाएं। हेबा रोते हुए बोली। अच्छा अच्छा मैं आ रही। हेबा ने रोते हुए सारी दास्तान उसके गोश गुजार की और यहाँ फजर की हालत ऐसी हो रही थी जैसे जिस्म में खून की एक बूंद भी ना बची। वो बमुश्किल कुर्सी का सहारा ली उठी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उससे उसकी जिंदगी की डोर छिन गई हो। एक एक कदम मन मन भर कर महसूस हो रहा था। चलने में दुश्वारी का सामना था, लेकिन वो हिम्मत मुजतमा करके जैसे तैसे सड़क पर आ गई थी। बाकी इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज।